Okay, we have started with this chapter activity based costing, and how many sums we have done? See, this was the sum number 1 we have already done, and this is sum number 2. Have we done with this? This question is also, I think, done. Yes? Three questions आपने कर Yeah, okay. three And questions. one unsolved problem. Yes, I remember. So, second question is done. Now, look at this third one. It is actually very simple. Everything is given. You just need to divide and get the answer. Am I audible? Yes, am I audible? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So see, illustration number 3 is all about activity based cost. I mean to calculate CDR. Arrowhead Limited manufacturing 2 products furnishing the following data for the year. How many products are there? T84 and T85 means 2 products are there. 2 type of products are Two. there. Okay. Now annual output is also given. Annual output means yearly output. 5,000 and 6,000 means if you want total production, it would be 65,000. Okay. Total machine hours for T84 20,000 hours, Yes. Sir. and for T85 product 1,20,000 hours. It is for the year, not for the month, not for the week. So 20,000 hours is yearly hours for making T84 product. Okay. Total number of purchase orders are 160 and 384, and total number of setups 20 and 44. Okay, total number of setups. Now, what all expenses are given? Let us just have a look at these expenses. The annual overheads are as follows: volume related activity costs. Uh, wait, yeah, volume related activity cost is 5,56,000. 5,50,000. Now, whenever I say volume related, volume means production. It is related to production. That means the more you produce the goods, the more expenses will be. Like if you produce more goods, you are using machines more and more. And if you use machines more and more, electricity bill, gas, water, electricity, all these expenses will naturally increase. So it depends on your production, number of production. Okay, means output. How much do you produce? Volume means it is related to output. How much? Volume is how much do you produce? Okay, so total production will be 65,000 here, T84 5,000 units, and T85 60,000 units. So total production is 65,000. Therefore, volume related activity cost, it will be divided by 65,000. Why? See, now here in this sum, you are not given with the column of cost driver. That means cost driver is not given. You need to find out. Now, two things you need to find out. One is cost driver, and the another thing is cost driver rate. That is CDR. Previously, cost driver was given to which cost driver will be applicable to particular expense. This particular cost driver will be applicable. Earlier, it was given, but now in this question it is not given. So you need to be very careful about cost driver. Only then your driver rate will be perfect. Okay. Now volume related, it is understood. See, think about the logic. No, volume related, so volume is how many units are to be produced. So 65,000 units are to be produced. Therefore the cost driver will be annual output, annual total output. Whenever I say total, total means both of the products will be considered together. T84 and T85. Guys, are you following me? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Okay. Sir. Next is setup related cost. Now see how simple it is. Cost driver is not given. Even though it is not given, but it is so simple to examine.
See, setup related cost means it is related to setup. Total number of setup. Yes, very good. So it is related to total number of, the base will be, the driver will be cost, total number of setups. So what will be total number? 20 plus 44. T84 has 20 and T84 5 has 44. So 20 plus 84 will be 64. So it will ultimately be divided by 64. Why? Because the cost driver is related to number of setups. Okay. Next, purchase related cost. Purchase related. That means you are purchasing raw material. So you are paying octroi duty. You may be paying freight duty. You may be paying many other expenses related to raw material. So while purchasing, you incur a few costs. That cost is known as purchase related cost. I'm just giving you examples so that you understand what are the purchase related cost. Okay, so purchase related cost will have a base of total number of purchase orders. Very simple. See, total number of purchase order will Yes. be its cost driver. नाम से ही, मतलब टाइटल आप पढ़ते हो ना, टाइटल में ही से ही समझ में आ जाता है कि इसका ड्राइवर रेट कौन सा होगा. क्लियर हुआ ये पूरा? Yes. हाँ, मतलब एक एक की एक्टिविटी को हम उसके खुद के जो एक्टिविटी का ड्राइवर है उससे हम डिवाइड करते हैं. इसीलिए तो इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्योंकि एक एक एक्टिविटी का जो जो उसको ड्राइव करता है ना, जिसकी वजह से वो एक्सपेंस होता है ना, वो ही हम वो बेस में लेते हैं. ठीक है. तो अभी देखो, इसने ना वैसे तो दो मेथड्स पूछे पर ट्रेडिशनल मेथड आपके आपके मतलब नहीं आता है पेपर में. आपके पेपर में आता है एबीसी एनालिसिस, मतलब एबीसी मेथड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ट्रेडिशनल होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ. देखो, ट्रेडिशनल में सबको नंबर ऑफ मशीन आवर्स से डिवाइड किया. 140 140 140 दिख रहा है. ये देखो, सबको वॉल्यूम रिलेटेड हो उसको भी मशीन आवर्स से डिवाइड किया, सेटअप रिलेटेड हो उसको भी मशीन आवर्स से डिवाइड किया, और परचेस रिलेटेड हो उसको भी मशीन आवर्स से डिवाइड किया. अगर आप देखोगे ना, मशीन आवर्स का टोटल 140 है. दिख रहा है सबको क्या स्क्रीन पे? Yes, ma'am. 20,000. हाँ, Yes. 20,000 प्लस 140, ये टोटल मशीन आवर्स है ना. इस ये सारी एक्सपेंसेस को टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड कर दिया. ये होता था पुराना मेथड. ये पुराना मेथड होता था, ट्रेडिशनल मेथड. ये अभी नहीं चलता है. अभी क्या चलता है? जो जिसका खर्चा है उसी एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर से उसको डिवाइड करना है. इसीलिए तो इसका नाम रखा गया ना कॉस्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड. एक्टिविटी, जिसकी जो एक्टिविटी है उसका जो ड्राइवर है उसी से डिवाइड होना चाहिए. इसीलिए हम उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं. ठीक है, समझ में आया? वैसे देखो, ट्रेडिशनल मेथड पूछा नहीं जाता, पर आपको चाहिए तो मैं करवा दूंगी, 5 मिनट लगेंगे. ठीक है. वैसे तो आपने समझ ही लिया, सब खर्चों को टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करते जाने का है ना. तो आता तो नहीं है, Yes. बट फिर भी चलो अभी हम शुरू करते हैं पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, जो हमारा मेन मेथड है और जो हमेशा पेपर में पूछते हैं. स्टार्ट करते हैं. लिखो, एरो हेड कंपनी लिमिटेड. कंपनी का नाम लिखो पहले, एंड देन कम टू द नेक्स्ट लाइन. राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर. स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर. कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? ट्रेडिशनल की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? Activity based costing. हाँ, तो अगर आप दोनों मेथड्स कर रहेंगे ना, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं. तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. अभी अभी आपने लिखा ना कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एबीसी मेथड, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड. ठीक है. चलो अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए आपको कितने कॉलम्स चाहिए होते हैं? 4. पहला कॉलम जो दिया होता है हमेशा कॉस्ट, ये कॉस्ट. उसके बाद उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, और उसके बाद कैलकुलेशंस, एंड देन लास्ट कॉलम विल बी सीडीआर, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर रेट. बनाओ, कॉलम्स बनाओ. कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर,
calculations and CDR. Let me know if it is done. Clear? Yes. I mean, have you draw the lines? Yes, Yes. ma'am. Okay. So let's start with number one. Only 3 activities are there. Only 3 different activity costs are there. Write down number one, volume related activity cost. Volume related. Volume means number of production. How many units are produced? उसके हिसाब से जो खर्चा होता है ना उसको बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट. राइट डाउन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट. अब उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? देखो कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा इसका एबीसी के हिसाब से. कितने नंबर ऑफ Number of यूनिट्स आप, production unit. यस, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ईयरली प्रोड्यूस करते हैं. ये जो एनुअल आउटपुट दिया ना, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन. कितने गुड्स को आपने प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं आउटपुट. कितने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके प्रोडक्शन किया उसको बोलते हैं आउटपुट. ठीक है. तो T84 में किया 5000 और T85 का जो प्रोडक्ट है उसके आपने कितने गुड्स बनाए हैं? 60,000. सो 5000 प्लस 60,000 इज हाउ मच? 65,000. यस. सो पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट ड्राइवर मतलब सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ये आपका किसका कॉस्ट ड्राइवर है? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट का. अब आ जाओ कैलकुलेशंस में. किसको किससे डिवाइड करना है? देखो वॉल्यूम रिलेटेड की, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी का जितना भी खर्च है 5,50,000 उसको डिवाइड करना है आपको टोटल प्रोडक्शन के साथ. टोटल बोले तो T84 प्लस T85 का आउटपुट. T84 प्लस T85 का आउटपुट मतलब 5,000 प्लस 65,000 का आउटपुट. 65,000. Yes, so total will be 65,000. That means 5,50,000 divided by 65,000. So what is your answer of CDR? 8.46. Rupees 8.46. Okay. Yes. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट. नंबर 2, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट. वो होता है ना मशीन सेटअप, ये उसकी बात चल रही है. Total number of setup. यस. इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स. तो कैलकुलेशन में आप कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करते हैं. मतलब इसकी कॉस्ट कितनी है? 8,20,000. 8,20,000. और आपका टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं? टोटल. 64. यस, टोटल मींस T84 Yes, प्लस ma'am. T85 का टोटल नंबर ऑफ सेटअप. दोनों को प्लस करके लिखना है. हाँ, क्योंकि मुझे तो टोटल चाहिए ना. 64. Yes, So ma'am. 8,20,000 divided by 64 is how much? 12,812.5. Very good. 12,812.50 paisa. 0.50. 12,812.50. Yes. Is it now clear? Yes, ma'am. Next, third, Yes. purchase related cost. Now, परचेज रिलेटेड कॉस्ट में आपको पहले ये देखना Total number पड़ेगा. of purchase order. हाँ, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, क्योंकि आपका खर्चा ही परचेज से रिलेटेड है ना. तो कितनी बार आपने परचेज ऑर्डर किया वो आपको याद है? रेक्विजिशन रेज्ड. बस उसका मतलब यही होता है परचेज Yes. ऑर्डर्स. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स का मतलब होता है रेक्विजिशन रेज्ड. वही है, सेम मीनिंग है, सिर्फ वर्ड्स अलग हैं और कुछ भी नहीं है. चलो, परचेस रिलेटेड का कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर्स.
टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, टोटल बोले मतलब दोनों को प्लस करके, तो कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड किया जाता है। परचेज रिलेटेड का खर्चा कितना है? कॉस्ट मींस खर्चा। $6,18,000. वेरी गुड, 6,18,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स कितने हैं? 544. 544 कैसे कैलकुलेट किया? 160 ऑफ T84 एंड T85 का 384, Add दोनों को ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो आपका CDR कितना आएगा परचेज का? 1,136.03. वेरी गुड, वेरी गुड। आप स्क्रीन पे देखो, मैच भी कर रहे हैं। 1,136.02 यस मैम। हो गया। और अगर ट्रेडिशनल मेथड करना है तो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको 2 मिनट देती हूँ। देखो, कैलकुलेशन ऑफ अभी इसमें CDR नहीं बोलेंगे, अभी इसमें जो हम निकालेंगे ना उसको CDR नहीं बोलते हैं। CDR कब होता है? जब हम एक्टिविटी को कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करते हैं। एक एक एक्टिविटी को उससे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से जब हम डिवाइड करते हैं ना, उसको तब बोलते हैं CDR। अब हम जो निकालेंगे ना वो अमाउंट पर यूनिट होगा, मतलब CPU, कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं ना, CPU, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम Yes. अमाउंट पर यूनिट। हमने सीखा था ना कॉस्टिंग में, लास्ट जो सेमेस्टर 2 था हमने कॉस्टिंग किया था उसमें। तो कॉस्टिंग में हमने सीखा था ना कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में हम लोग CPU निकालते थे, आपको Yes, ma'am. याद है सबको? CPU, हाँ। तो कॉस्ट Yes, ma'am. पर यूनिट निकालते थे। कैसे निकालते थे? अमाउंट को डिवाइड करते थे क्वांटिटी से। अभी भी वही किया है। देखो, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट को, मतलब 5,50,000 को डिवाइड किया है नंबर ऑफ आवर्स, मशीन आवर्स 40,000। नंबर ऑफ आवर्स मतलब वही हो गया ना। आप अगर क्वांटिटी लोगे तो मटेरियल के बारे में बात करोगे तो क्वांटिटी, अभी मैं वॉल्यूम के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसके पीछे कितने नंबर ऑफ आवर्स लगाए गए हैं। ठीक है, तो 5,50,000 डिवाइड बाय 140 आवर्स, तो आपका आएगा 3.92। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 8,20,000 था आपका, पहले जैसा ही सेम, बस उसको डिवाइड किससे करते जाना है? नंबर ऑफ आवर्स। 5.85 आंसर आएगा आपका पर यूनिट। और 6,18,000 डिवाइड करोगे 140 से, 1,40,000 आवर्स से, तो आंसर आएगा आपका 4.41। देखो, दोनों के पर यूनिट में, दोनों पर यूनिट ही है। ये कॉस्ट ड्राइवर रेट भी पर यूनिट होता है और ये भी पर यूनिट होता है, लेकिन इसका पर यूनिट कितना छोटा है और इसका देखो 12,812 रुपए। दिख रहा है आपको फर्क? Yes. तो Yes, ये ma'am. फर्क की वजह से ही तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज किया जाता है ना, कि इसमें रियल पता चलता है आपको, रियल। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. आपको ये ट्रेडिशनल मेथड अगर बनाना है तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप बना लीजिए। यस। Okay, so let us begin with the next question. Wait. Okay, so this is the question. Next one. देखो, अभी इसमें ना कैसे करना है आपको। A company produces 4 products, PQRS. The data relating to production activity is as under. देखो, अभी चारों की क्वांटिटी दी हुई है। PQRS, P का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1,000। Q का कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 10,000 यूनिट्स। R का, S का, ऐसे दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। नीचे दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मतलब मतलब P का नहीं इसका दिया है मटेरियल कॉस्ट. किसका? हाँ, नहीं दिया है। P. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट P का नहीं दिया है। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी नहीं दिया है, मतलब नहीं होगा, मतलब खर्चा नहीं होगा इसका, नील पकड़ना है Okay. इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Okay. ओवरहेड्स, अभी देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं इन्होंने। कौन कौन से ओवरहेड्स दिए हैं वो भी देख लेते हैं। ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, एक तो ये खर्चा है। ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग मटेरियल,
ठीक है, मतलब जितना आप नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर करते हो ना, वो उस पर डिपेंड करता है ना आपका ये खर्चा। सेटअप कॉस्ट, नेचुरली उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ सेटअप। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, तो नीचे आपको देखो, अगर अगर आपको दिख रहा है तो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स भी दिया हुआ है। और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड, मतलब आप जैसे टाइटल टाइटल पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो 5 खर्चे दिए और नीचे इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने PQRS की, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ड्राइवर नीचे दिए हैं। अच्छा, क्या पूछा उसने, सिलेक्ट अ सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले तो पहला स्टेप है आपको कॉस्ट ड्राइवर पहचानना है फॉर ईच आइटम ऑफ द ओवरहेड्स एक्सपेंसेस एंड आल्सो कैलकुलेट CDR, मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मतलब कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है ना। और फिर क्या पूछा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग Yes. कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब इसमें फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालनी है। देखो पूछते नहीं है वो लोग, मैं फिर से बता दूं, वो पूछते नहीं है बट स्टिल अभी दिया हुआ है तो हम लोग निकाल देंगे। देखो सबसे पहले तो ये आप लिखो ऊपर से, चलो साथ साथ में करते जाएंगे। CDR तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितना इजी पार्ट है निकालना। सो सबसे पहले तो हम CDR निकाल लेते हैं, और उस CDR से निकालने से पहले हमको कॉस्ट ड्राइवर डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलो लिखो, कंपनी का नाम क्या है, नहीं दिया मैम। हाँ नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। Statement of calculation of CDR as per ABC analysis. Sorry, as per ABC method. Calculation of CDR as per ABC method. लाइंस कितनी ड्रॉ करनी है, कॉस्ट कॉलम्स कितने चाहिए, 4। कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कैलकुलेशन एंड CDR। कॉलम्स बनाइए, आई वेट फॉर यू। यस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी कॉस्ट से। कितनी कॉस्ट है हमारे पास, 5। तो सबसे पहले आप हेडिंग्स लिख दो फटाफट, थोड़ा जल्दी। हाँ, फर्स्ट ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। सो पहला लिखो ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है मुझे इसका बेस क्या लेना है। ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब मशीन से रिलेटेड खर्चे, तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स लेने पड़ेंगे हमको। नंबर Yes. ऑफ मशीन आवर्स नीचे तो नहीं दिया है उन्होंने, डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन ऊपर दिया हुआ है, ये देखो मशीन आवर्स पर यूनिट दिख रहा है, डिवाइड यूनिट मतलब पर यूनिट, ये स्लैश की साइन होती है Yes. ना, इसको पर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मशीन आवर्स पर यूनिट, अब ये 0.50 पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट बनाने पर 0.50 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो 0.50 आवर्स एक यूनिट को बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट पी को जब आप देखोगे, प्रोडक्ट पी को, तो क्या आप सच में एक यूनिट बना रहे हो, 1000 units. यस। सो 1000 यूनिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, Yes 1000 ma'am. इंटू 0.50, तो जो आपका आंसर आएगा वो पी का, 500. हाँ 500 वो पी का नंबर ऑफ आवर्स। ऐसे ही सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर क्यू, आर एंड एस, and then we have to get the total of all the four. That will be known as my cost driver rate, sorry, cost driver, वो मेरा कॉस्ट ड्राइवर होगा। समझ में आया कैसे निकालना, मैं फिर से बता दूंगी, डोंट वरी, आई विल रिपीट वंस अगेन, बट अभी के लिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी कि कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फिर लिखो, सबसे पहला ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। नेक्स्ट overheads relating to ordering material,
एक काम करते हैं ना, कॉस्ट ड्राइवर भी साथ साथ लिखते जाते ना, जल्दी हो जाएगा। ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? फर्स्ट का Machine hours. total Number of machine hours, total, the word total is very important. टोटल मशीन आवर्स चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो पी क्यू आर एस का टोटल, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग मटेरियल, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? यस Material cost. Total material cost. ना ठीक से पढ़ो, नीचे दिया हुआ है 4 कॉलम्स, नीचे टेबल दी हुई है, उसमें से Total एक है, material order. ध्यान से देखो। राजन आप ही आंसर कर रहे हो ना? और Yes, थोड़ा अच्छे से देखो और फिर आंसर करो। ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग मटेरियल, ऑर्डरिंग तो नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर दिया हुआ है ना, मतलब नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड। कितना yes, इजी है। नंबर ऑफ, देखो ऑर्डरिंग मटेरियल से रिलेटेड खर्चा, आप अभी उसको इंग्लिश में पढ़ो, ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग मटेरियल, ये किसका खर्चा है? जितनी बार हम मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं ना उसका खर्चा है, तो कितनी बार ऑर्डर करेंगे उतना खर्चा पड़ेगा। तो नंबर ऑफ yes, मटेरियल ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रेक्विजिशन रेज्ड, इसका मीनिंग वही है, सिर्फ बार बार वो नाम चेंज करके दे रहे हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, बात तो वही है ना कि मैंने कितनी बार मटेरियल को ऑर्डर किया, मतलब खरीदा, परचेज किया। रेक्विजिशन का भी मतलब वही होता है। आया समझ में? अभी क्लियर है राजन? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग मटेरियल का कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर। मेरे कर्सर को देखो, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, ठीक है। मैम टोटल नहीं आएगा हाँ इसके साथ. अ, हाँ मतलब मेरा बोलने का मतलब वही था, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, आप टोटल लिखते जाइए। नेक्स्ट है Okay. आपका सेटअप कॉस्ट, थर्ड है आपका सेटअप कॉस्ट। बताएंगे इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मैम टोटल नंबर ऑफ Number of वेरी सेटअप। गुड setups. वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स।